Dear students, good afternoon to all of you and welcoming you to my YouTube channel Learning Island. Today मैं क्लास 7 का साइंस बुक से चैप्टर 9 का बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्लस all the answers of the questions I will discuss. Okay, may not be all this will be complete in one video. So you all are requested to be with me till the end of the video. Okay, so let us go to the main topics. Okay, so this is the chapter motion and time, class 7. Okay, so you see here we will have to first of all know what is motion and time. Not only this chapter, in every chapter you will have to know the basic meaning of the name of the chapter. There is motion and time, both are related to each other. How? Motion is, you can define the motion as the movement or change of position of any objects with respect to time. अगर समय के साथ कोई वस्तु, कोई चीज जिसका डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसको हम बोलेंगे मोशन. ओके, तो ये मोशन भी डिफरेंट टाइप्स का होता है. इस बुक में मेनली 3 टाइप्स का मोशन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है. यू विल गेट वेरी डीप इन योर अपर क्लास. सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द मोशन along straight line. Okay, and regarding circular और periodic motion. ठीक है, तो before starting this, there you will get some topics or some exercise for practicing purpose. That is, see in this table in your NCERT books, in the table it has been given. The example of motion here: soldiers in a march past. ये किस टाइप का मोशन होगा इसके बारे में बताना है. ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ, आप लोग सोचो और लिखो खुद से. एंड after pausing these videos, if you do not be able to write it down, so I am writing here. Soldier in a march past, it will be a straight line motion. Okay, और linear motion क्या होगा? ये होगा linear motion. ठीक है, so write it down. Linear motion. Okay, you can say also it is a straight line motion. Okay, now bullock cart moving on a straight road, definitely it is also linear motion. Okay, hands of an athlete in a race. देखो, जब कोई एथलेट्स मूव करता है, इसका हैंड है. ठीक है, ये क्या करता है? हैंड को ऐसे ऊपर नीच मूव करेगा. इसका भी ऐसे ऊपर नीच मूव करेगा. दैट इज, दिस इज द वन काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन. ओके, पीरियोडिक मतलब ये मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज पीरियोडिक मोशन. ओके, पीरियोडिक. एंड पेडल ऑफ ए बाइसाइकिल, इट इज circular. Okay, circular. Motion of earth, this is also periodic. Okay, this is also periodic motion. Motion of swing, that is swing क्या होगा? ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन. अब यहाँ पे ऑसिलेशन तो बताया नहीं, ये बोला सर्कुलर, पीरियोडिक और स्ट्रेट. सो ये भी होगा पीरियोडिक.
ओके, क्योंकि ऑसिलेशन बी मतलब पीरियडिक मोशन इज ऑल्सो एन ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक हो सकता है। सो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट सर्कुलर एंड पीरियडिक बताया, तो मैं यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा पीरियडिक। ओके, मोशन ऑफ ए पेंडुलम, ये भी पीरियडिक होगा, ठीक है। ओके, पीरियडिक मोशन, ठीक है, क्लियर। सो एज पर योर बुक आई एम मूविंग वन बाय वन, you can note it down by pausing these videos. Okay, dear students, so let us moving this annotation first, then I will move forward. So hope you are getting my point. Okay, if you find any difficulties, you can write me in the comment box. Okay, because it is not a live session. So let us move forwards. I am moving forward. Here I see. Before going to the types of motion, here one topic has been given: speed. When somebody or something is moving, it has some speed. आप लोग जानते हो स्पीड वेलोसिटी बोलते हैं। सो स्पीड एंड वेलोसिटी में एक डिफरेंस है, यू विल गेट इट इन द अपर क्लास। इन योर क्लास विल ओनली डिस्कस अबाउट स्पीड। ओके, तो स्पीड क्या होता है? सपोज ये जो कार है, ये कार, देखो ये कार यहाँ से, जो फर्स्ट पिक्चर है, ये कार, ये एक मार्ग दे रखा है, यह चल रहा है। जब ये सेकंड पिक्चर में देखो, ये कार यहाँ से मूव होकर यहाँ आ गया, ठीक है। ये रेड वाला कार यहाँ से यहाँ आ गया। ऐसे डिफरेंट कार्स का मूवमेंट डिफरेंट हुआ, क्योंकि उनका जो स्पीड है ना वो डिफरेंट है। तो ये स्पीड होता क्या है? स्पीड होता है इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ये इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको टाइम से डिवाइड करना। सपोज एक कार 10 किलोमीटर, सपोज ये 10 किलोमीटर कवर किया 5 घंटे में, ठीक है, 5 आवर। तो इसका क्या होगा स्पीड? इसका स्पीड होगा एज पर तो स्पीड 10 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका स्पीड होगा 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, चलो मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ तो समझ में आएगा शायद। तो देखो इसका स्पीड क्या मिला मेरे को, इसका स्पीड मिला 10 गया था किलोमीटर, इसका हम डिवाइड करेंगे टाइम से 2 आवर। तो डिवाइड करके क्या होगा? ये होगा 5 किलोमीटर प्रति पर आवर, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में, प्रति घंटा पर घंटा में ये जाता है 5 किलोमीटर। दिस इज द स्पीड। सो स्पीड होता है कि डिस्टेंस, यू कैन डिफाइन इट लाइक दिस: डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यार भी डबल एल ई डी, ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यार भी डबल एल ई डी, ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन 1 आवर, आवर मत बोलो, ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ओके, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट्स पर यूनिट टाइम। ओके, एक यूनिट, क्योंकि ये टाइम पर क्यों मैंने बोला, यूनिट क्यों बोला मैंने, आवर क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि पर सेकंड होगा या पर आवर होगा या पर मिनट होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला पर यूनिट टाइम। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट per unit time is called speed. Okay, so mathematically the speed formula is equal to distance by time. Okay, so now let us move forward. Hope you are getting my point and everything is clear to you, because I am explaining it elaborately. Okay, so hope the term speed is clear to you. Okay, I will also give you some example of numericals so that you can got it very easily. Okay, so see, let us go to the next topics. Okay, I am going first a little bit, because otherwise it will be very longer videos.
सो सी, यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, आई एम नॉट गोइंग थ्रू द लाइन बाय लाइन बिकॉज इट इज नॉट ऑल्सो नेसेसरी, you can go through it, but I am explaining the main things which needs to be understand. So we shall use the term speed for average speed also. Okay, so what is average speed? Okay, I'm coming to this average speed also. Average speed, suppose a car, okay, suppose a car has moved from this here to here, okay, point A to point B. सपोज यहाँ से टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 10 किलोमीटर। ओके, इन्होंने क्या किया, फास्ट 2 किलोमीटर गया, फास्ट 2 किलोमीटर गया कितना टाइम पे, सपोज गया 30, सपोज ये गया 1 आवर में, 1 आवर, ये फास्ट 2 किलोमीटर गया 1 आवर, ये 3 है। फिर यहाँ पे सपोज 3 किलोमीटर, ये 3 किमी गया ये, फिर 1 आवर में, फिर यहाँ पे कितना बचा, और लास्ट 5 किलोमीटर ये गया आपका 2 आवर में। ठीक है, तो देखो ये जो इसका स्पीड हर जगह पे बराबर नहीं है। ए टू, सपोज ये है क्यू, ए क्यू, फिर क्यू टू आर, फिर आर टू बी। ए टू क्यू हुए टोटल 2 किलोमीटर, ये गया 1 घंटे में। फिर क्यू टू आर गया 3 किलोमीटर गया 1 घंटे में। और आर से बी ये 5 किलोमीटर, ये गया 2 घंटे में। ठीक है, अब इसका स्पीड क्या होगा देखो, ए टू क्यू इसका स्पीड कितना होगा, ए टू क्यू स्पीड होगा ये S1 अगर बोलते हैं स्पीड, ये टोटल टाइम कितना गया 2 किलोमीटर, बाई टाइम कितना 1 आवर। ठीक है, तो इसका स्पीड हो गया 1 किमी/आवर। ठीक है, और फॉर सेकेंड के लिए जो क्यू टू आर में जो गया उसका स्पीड हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम 1 आवर, ये हो जाएगा 3 किमी/आवर। एंड फॉर थर्ड फेज उन्होंने गया 5 किलोमीटर, तो 5 किमी बाई टाइम 2 आवर, तो इसको डिवाइड करने से आएगा 2.5 किमी/आवर। ठीक है, अब देखो ऐसे क्यू में गया उसका स्पीड हुआ 1 किलोमीटर/आवर, क्यू से आर गया इसका स्पीड हुआ 3 किलोमीटर/आवर, आर से बी गया स्पीड हो गया 2.5 किलोमीटर/आवर। तो ये सेम तो नहीं है। अभी अगर कोई पूछता है कि ये बताओ ये ए से बी जो गया पूरा डिस्टेंस कवर करने में इसका एवरेज स्पीड कितना है, ठीक है, या बोल सकते हैं मीन स्पीड क्या है। तो ये निकालने के लिए आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो कि 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर प्लस करके इसको डिवाइड करो, ऐसे नहीं हो सकता है। क्या करना पड़ेगा, इसका रूल्स है देखो, ऑलवेज एवरेज स्पीड का रूल्स है, एवरेज स्पीड मतलब होता है, ऐसे करोगे तो मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये याद रखना टोटल टाइम। तो देखो यहाँ पे कितना हुआ टोटल, ए टू क्यू 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर प्लस क्यू टू आर 3 किलोमीटर, 3 प्लस आर टू बी कितना हो गया 5 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर आएगा ऊपर में, तो नीचे में आएगा टोटल टाइम। देखो पहले ए टू क्यू लगा था 1 आवर, सो 1 प्लस क्यू टू आर लगा था 1 आवर, फिर 1 प्लस किया, आर टू बी लगा था 2 आवर, तो 2 प्लस किया आवर। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया 3 + 2 5, 10 ऊपर हो गया 10 किलोमीटर टोटल, 10 किलोमीटर बाई 2 1 3 4 आवर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, 2 5 यानी कि आ रहा है 5/2 किलोमीटर/आवर, ये आएगा 2.5 किमी/आवर। ठीक है, तो ऐसे एवरेज स्पीड निकलता है। तो हमने क्या सीखा, दो चीज,
एक तो सीखा स्पीड कैसे निकालता है, और सीखा क्या, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड हमने सीखा। ठीक है, यही दो टॉपिक्स है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी है, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट माई डियर स्टूडेंट्स। सो प्लीज बी रिमेन विथ मी, and if you find this video or this teaching is really helpful or understandable to you, please forward this video to your friends also. Okay, now come to, here is the motion ऐसे भी टू टाइप्स का भी हो सकता है, कैसे, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशंस। ठीक है, हम तो पहले देखा था सर्कुलर, लिनियर एंड पीरियोडिक। ओके, बट ये जो है ना मोशन का और एक टाइप होता है, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में ये मोशन दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म, व्हाट इज यूनिफॉर्म? देखो, यूनिफॉर्म का मतलब जो स्पीड में वो चल रहा है ना, देयर विल बी नो चेंज, नो चेंज इन स्पीड। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीड एक बार ऐसे बी जाने में के लिए पहले था 1 किलोमीटर पर आवर, फिर हो गया 2 किलोमीटर पर आवर, फिर हो गया 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो हुआ स्पीड का चेंज, तो अब इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, मतलब इसका स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब इसका स्पीड सेम नहीं है। मतलब सेम टाइम इंटरवल में अगर पहले 1 घंटा जाता है 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, फिर नेक्स्ट 1 घंटा जाता है 2 किलोमीटर पर आवर में, फिर नेक्स्ट 1 घंटा जाता है 1 किलोमीटर पर आवर में, इसे डिफरेंट स्पीड एट सेम टाइम स्पान, मतलब सेम टाइम के अंदर में अगर स्पीड कम या ज्यादा होता है जब ये स्ट्रेट में चलता है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ये स्पीड का कोई चेंज नहीं होगा, पहले 1 आवर इसका स्पीड 2 किलोमीटर था, 2 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड मतलब नेक्स्ट 1 आवर में भी इतना ही था, नेक्स्ट 1 आवर में इतना ही था, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्लियर? So hope this is clear to you. Okay, I am only explaining the important topics from your book. Okay, so students, hope you are enjoying. You just write it down in your notebook, whatever you are keeping with you while watching this video. Okay, so let us move forward without getting any delay. So I'm just deleting the annotation. Okay, now we will move forward. Let us see, in this part there is a watch, that is pendulum. Below this watch there is a pendulum working. I will say about pendulum. What is pendulum work? Pendulum is one type of oscillation. This will move like this. So, and these all watches are used for measuring the time. This is called wall clock, this is called टेबल क्लॉक, जो हम टेबल में रखते हैं। ठीक है, डिजिटल क्लॉक ये भी आप लोग देखा है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बिकॉज if I start explaining everything, what you know, it will take lots of time. It will make the video longer. So now here you come. This is the pendulum. Okay, what is simple pendulum and what is oscillatory motion? Okay, pendulums perform oscillatory motion. It is periodic motion. Okay, periodic motion को oscillatory motion भी बोलता है। ठीक है, तो ये periodic motion कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक स्लाइड में। So let us go to the slide. Here you see, I am showing you through animation. Okay, ये पे जो हम थोड़ी देर पहले दिखा था कि स्ट्रेट लाइन मोशन, देन अभी मैंने बोला ऑसिलेटरी मोशन,
there is periodic motion, and also I have told about the circular motion. Okay, my students. So let us see what is happening in straight line motion. So देखना अभी ये कार जो है ना एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है, उसका आवाज भी आएगा, वाओ, ठीक है. सो यू सी दिस इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्ट्रेट लाइन, देयर इज नो जिगजैग मूवमेंट ऑफ दिस कार, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रेट लाइन मोशन. नाउ कम टू द पॉइंट ऑसिलेटरी मोशन. ओके, ऑसिलेशन दैट इज ए पीरियोडिक मोशन, ठीक है. अब देखते हैं ये कैसे करता है, ठीक है. ये भी देखना है, नहीं देखना है. देखो ये एक बॉब है, पेंडुलम बोलते हैं इसको. ये देखो मूव कर, जूम, वाह. तो ये इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन. ये जो है ना ये होता है टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है. ऐसा ये करते हैं टू एंड फ्रो. फ्रो क्या होता है, फ्रॉम, मतलब ये एक बार इधर जाता है फिर आता है, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है. दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन इफ इट मूव्स द डिस्टेंस with same time. If it moves same distance, this is called the periodic. Okay, एक टाइम इंटरवल में ये सेम डिस्टेंस मूव करेगा ऑलवेज, दिस इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन. मतलब एक पीरियड में एक ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. ये देखना तुम्हारा जो ऊपर में सीलिंग में फैन रहता है ना, फैन मूव मूव करता है ना, फैन जैसे जुम 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 जुम, इसको भी बोलते हैं क्या, पीरियोडिक मोशन. बट ये फैन अगर ऐसे 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 करता है, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे है, मतलब जो ऐसे ऐसे क्या करता है, हैंगिंग ऐसे मूव करता है, तो इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी. अब तुमने देखा ना कैसे होता है ऑसिलेटरी मोशन. चलो, दिस इज द पेंडुलम. सो द मोशन ऑफ पेंडुलम इज ऑसिलेटरी मोशन एंड ऑल्सो यू कैन से पीरियोडिक मोशन. नाउ वी विल मूव another type of motion. This is called circular motion. Okay, see, that will be the circular motion. Okay, it is moving in a circle. वाह, कितना आसान है ना समझने के लिए. वेरी गुड. सो होप यू आर एंजॉइंग, राइट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, let us go to the next topics from your book. Okay, so let me delete these annotations again, because otherwise it will disturb you in the next page. Okay, my dear students, come to that point. So we have learned also the oscillatory motion, rotary motion, and circular motion. Okay, I have shown you the visual, the videography. Okay, so hope this is clear to you. Now moves to the, अभी जो हम ये टाइम के बारे में बात किया, स्पीड के बारे में बात किया, वो सब के लिए तो एक ये होना पड़ेगा ना, यूनिट, मतलब मीटर पर सेकेंड या मीटर, कितना लंबाई, कितना डिस्टेंस गया. हम बोलेंगे ना ये 2 हाथ गया, 3 हाथ गया, ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि सबका हाथ तो बराबर है नहीं. तो इसीलिए हमको साइंटिस्ट ने मिलके एक स्टैंडर्ड बनाया कि हम इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में यही बोलेगा सेकंड. मतलब अमेरिका में जाओ, जापान में जाओ, जर्मन में जाओ, और इंडिया में जाओ, कोई भी जाओ, वो सेकंड क्या उनको पता है. जगह बोलोगे ना कि 1 हैंड, ऐसे नहीं समझ में आएगा. तो दिस इज द स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं यूनिट. तो स्पीड का यूनिट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीख लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये जो लाइन में अभी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, दिस आई एम ऑल्सो marking few lines inside your textbook. Okay, this very important. देखो, the basic unit of time is second. Very very important. You can say this will come in your exam, 100% guarantee. Okay students, so just you mark it in your book and also note it down in your copy. So its symbol is larger, but if you गो फॉर ए लार्जर यूनिट, ठीक है ना, सेकंड, तो हम यूज करेंगे सेकंड के बाद जो लार्जर आएगा वो आएगा मिनट. ओके, देन आएगा आवर. सो यू नो ऑल दिस, ठीक है. नाउ द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट्स रिटन इन द सिंगुलर. अब इसका जो हम जैसे कि सेकंड को क्या लिखेंगे, हम तो जानते हैं सेकंड मतलब होता है SECOND, बट हम इसको जब सिंबल में लिखेंगे तब लिखेंगे एस ओनली, स्मॉल एस, ठीक है.
और जब आवर को लिखेंगे, ऐसे तो आवर HUR होता है, हम इसको लिखेंगे ओनली H। सो दीज आर द सिंबल्स ऑफ टाइम यूनिट, ठीक है। एंड मिनट को लिखेंगे कैसे, मीटर, ये तो लेंथ तक हो गया। मिनट MIN, मिनट का लिखते हैं MIN, ठीक है। क्योंकि एम क्यों नहीं लिखता है, क्वेश्चन है। सर आपने बोला कि सिंबल में आवर को H लिखता है, सेकंड को S लिखता है, तो मिनट को M क्यों नहीं लिखता है, मिनट लिखते हैं मिनट, क्योंकि M से हम दिन करते हैं मीटर, ठीक है। दैट्स वाई M को हम लिखते हैं मीटर। दैट्स वाई अगेन इफ यू यूज M एज ए मिनट तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए साइंटिस्ट ने बोला इसको MIN लिखो, मिनट, ओके। सो दिस इज द सिंबल। और स्पीड का देखो, स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, तो इसीलिए इसका स्पीड का होगा मीटर पर सेकेंड, ये होता है इसका यूनिट। सो बेसिक यूनिट ऑफ, देखो बताता हूँ, ये भी आप लोग मार्क करना, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली उसका बड़ा यूनिट में जाओगे तो आएगा, ये मीटर पर मिनट लिख सकते हो, किलोमीटर पर आवर लिख सकते हो, ठीक है। चलो, लेट अस गो टू द next topics without any delay, okay. I will not make it longer, and I'm making also fun over there so that you can understand it very easily. So dear students, please remain with me. Now I will suggest in every chapter where there is a some pages there, they have highlighted some topics, okay. Always go through this very seriously. Why? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ओके। सो यू सी, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये वाला हाईलाइटेड स्पेस, इसमें पढ़ो क्या बोला, एक बार पढ़ लो, क्या दिक्कत होता है पढ़ने में। देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी दैट द पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। देखो, अगर आप एक स्टैंडर्ड लेंथ का पेंडुलम लेते हो ना, ऐसे ये पेंडुलम है, ये तो ये हैंग करता है, ये जो लेंथ है ना इसको बोलते हैं लेंथ। जो रस्सी से ये हैंग होता है ना इसको बोलते हैं लेंथ। ये अगर एक फिक्स लेंथ का लोगे ना, तो ये पेंडुलम को तुम जहाँ पे भी जाके खींच के छोड़ोगे ना, ये जितना भी घूमेगा ऐसे ऐसे। कोई बोलता है नहीं मैं इसको इतना नहीं लूंगा, मैं इसको इतना लेके छोड़ दूंगा, कोई बोलेगा मैं इसको इतना लेके छोड़ूंगा, तो ये इतना घूमेगा ऐसे ऐसे। ईच एंड एवरी केस में इसका जो टाइम पीरियड है ना, बोलेगा व्हाट इज टाइम पीरियड सर, बताऊंगा अभी, ठीक है। टाइम पीरियड जो होगा इसका, ये ऑलवेज सेम रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोला कि एक एक पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या वेरी वेरी करता है क्या, बोलेगा नहीं, पेंडुलम का टाइम पीरियड वेरी नहीं करता है, नॉट वेरी, ठीक है, नॉट वेरी। ये फिक्स रहता है, फिक्स क्या रहता है, फिक्स्ड, और ये कैसे कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा, ये तो ठीक है। अभी ये जो पेंडुलम हम बात कर रहे हैं ना, ये पेंडुलम के पीछे कौन साइंटिस्ट का हाथ है, ये तो जानना पड़ेगा ना। इतना बड़ा पेंडुलम बना दिया, इतना घड़ी बना दिया, इसमें बहुत कुछ लगा दिया, ये है साइंटिस्ट गैलीलियो, ठीक है। ये नाम आ सकते हैं, ठीक है, कि पेंडुलम के साथ कौन साइंटिस्ट का नाम कनेक्टेड है, ये गैलीलियो, ठीक है। और हु हैज इन्वेंटेड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, और हु वर्क विद द पेंडुलम, दिस इज गैलीलियो गैलीली, इसको बोलते हैं गैलीलियो गैलीली, ठीक है। ये नोट करके रखना, काम आएगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो कम फास्ट फॉरवर्ड। सो दिस इज ऑल दिस आर 2000, ये सब यूनिट्स है, ये इसका इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। सो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। यहाँ पे जो फिर एक आया हुआ है हाईलाइटेड पीस, ये पढ़ो। द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी measured with commonly available clock and watches is second most important. So ये आपको नोट करना होगा। जो वॉच अभी अवेलेबल है, जो अवेलेबल था पहले, अभी तो बहुत और आ गया,
द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विद कॉमनली अवेलेबल क्लॉक, जो कॉमनली अवेलेबल होता है, जो हम यूज करते हैं नॉर्मल पीपल, वो होता है, उसमें हम सेकेंड तक मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके अलावा भी जो लेबोरेटरी में, जो इंडस्ट्री में, जो माइक्रो लेवल में साइंटिस्ट, जो तुम्हारा स्पेस सेंटर्स फॉर सेंडिंग द सैटेलाइट, वो लोग जो क्लॉक यूज करते हैं ना, उसमें सेकेंड से भी कम टाइम मेजर कर सकते हैं। ये क्या है, देखो, बहुत सारा क्लॉक निकल गया है, ठीक है। सो वी कैन मेजर इंटरवल्स, टाइम इंटरवल्स एज स्मॉल एज 1 मिलियंथ, मतलब 1 सेकेंड को अगर मिलियन में डिवाइड करोगे तो उसका एक पोर्शन भी हम मेजर कर सकते हैं, इवन बिलियन भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वेरी स्मॉल, सेकेंड से भी बहुत कम, बिलियन, ठीक है, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, ठीक है। तो ये सब अभी आपको आ सकता है कि 1 माइक्रो सेकेंड क्या होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखो मैं नोट कर रहा हूँ, तो मैं मार्क कर रहा हूँ, 1 माइक्रो सेकेंड इज 1 मिलियंथ ऑफ सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि हाईलाइट तो करो। और ए नैनो सेकेंड क्या होता है, ये नैनो सेकेंड होता है ए बिलियंथ ऑफ ए सेकेंड, ठीक है। सो क्लॉक दैट मेजर सच स्मॉल टाइम इंटरवल आर यूज टू, कहाँ पे यूज होता है, यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। जो चंद्रयान भेजने के लिए जो ये लोग करता है ना कैलकुलेशन, एक सेकेंड का मिलियन भाग का एक भाग का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो, सो नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी शोन द हाइलाइटेड पोर्शंस, you might have noted down. So let us go to the next page. Okay, here you see few these are used in early days. Okay, solar, the sundial, it is used in the Jantar Mantar, which is situated in the Delhi, New Delhi. Okay, so if you students, if you visit the science city of Tripura in Siddhi Ashram area, then you will be able to see this Jantar Mantar model. Okay, here this model has been shown. So these types of, they what they do, what they did, they put a stick over there in the ground, and when sun comes, its shadow falls on the ground. So by this shadow, they can guess the time. This is called the sundial. And also one more time they used this sand, मतलब this type of ऐसे ग्लास का टाइप का ऐसे रहता है, इसका ऊपर वाला हिस्से में सैंड रहता है, और सैंड सैंड धीरे धीरे नीचे गिरता है, तो इसका गिरने का टाइम लगता है 24, मतलब 12 आवर्स। एक बार ऐसे घूमेगा तो 12 आवर्स हो गया, फिर उसको पलट देगा, फिर 12 आवर्स, ऐसे एक दिन होता है, ठीक है। तो क्लॉक का भी ऐसे करता है, ये होता है वाटर क्लॉक, मतलब एक कंटेनर में वाटर रहता है, यहाँ पे एक रहता है होल, यहाँ से वाटर गिरता है, टप 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 टप, ठीक है। अच्छा, ये सब, ये जो सैंड क्लॉक है ना, इसको आवर क्लॉक भी बोलता है, ठीक है, मैंने बोल दिया, मेरे को याद आया तो। चलो, ये वाटर क्लॉक भी ऐसा ही है, वाटर गिरता है टप टप करके, एक टाइम फिक्स है, इसे ऐसे डिजाइन किया हो जाता है। इसका डिजाइनिंग ऐसे क्या होता है कि इसमें जो वाटर गिरता है ना, एक फिक्स टाइम इंटरवल में ये खाली होता है पूरा स्पेस, ठीक है। तो ऐसे वाटर क्लॉक पहले जमाना में यूज करा था, बट दोज क्लॉक्स आर नॉट परफेक्ट फॉर साइंटिफिक work is concerned, ठीक है। So that's why the present scenario, lots of scientific watch has been introduced, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, हम और आगे बढ़ते हैं वेरी क्विक। होप जस्ट दिस फॉर योर गिविंग यू द आइडिया अबाउट द टॉपिक्स दैट मेंशन इन योर बुक्स, ओके। क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे अगर इनसाइड क्वेश्चन आता है ना, आप लोग को आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं इसको डिटेल्स में जा रहा हूँ, ठीक है। So after giving all this basic idea, I will go to the your exercise, ठीक है। So देखो, यहाँ पे एक लड़का बॉल छोड़ रहा है, इसका स्पीड कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ये दिखा रहा है, ये जरूरत नहीं इतना। लेट अस मूव टू द, यहाँ पे देखो, नेम ऑफ द ग्रुप, डिस्टेंस मोड बाय द बॉल, ये एक्सपेरिमेंट, ये हमको जरूरत नहीं है, हम ये स्किप करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो पेज है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई एम ओनली डिस्कसिंग द पेज विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। सो देखो, यहाँ पे जो दिया
कितना दिया, 9 दिया। 9 9 क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन यू कैन से। यहाँ पे देखो, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एक फैल्कन, ये ऑब्जेक्ट जो है ना, इसका स्पीड कितना है, 320 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे बोला स्पीड को तुम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, किलोमीटर पर आवर से। देखो मैं बताता हूँ सिंपल रूल, किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड देता है, तुम इसको कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर पर सेकंड में। तो क्या करना है, देखो सिंपल, जो भी देगा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वाट एवर, सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है। देखो इन्होंने दिया 320 किलोमीटर पर आवर, इसमें क्या क्या, ऊपर में लिखोगे 320, फिर इसको जैसे दिया किलोमीटर, नीचे में लिखोगे 1 आवर, ठीक है। इसका मतलब ये जो है ना, पहले तुम 320 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों क्यों, क्योंकि 1 किमी इक्वल टू 1000 मीटर। तो इसको लिखोगे मीटर, नीचे में 1 आवर को भी लेना है सेकंड में, तो 1 आवर को जब तुम 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा मिनट में, फिर मिनट को जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा सेकंड में। तो यहाँ पे लिखोगे एस, सेकंड। इसका मतलब ये अभी कैलकुलेशन करके जो आएगा, जीरो जीरो कट गया, यहाँ पे जीरो जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ पे 6 है, तो नीचे में कितना आ जाएगा और कटेगा, यहाँ पे 6, तो ये इसको काटो 2 से, 3 आ गया, ये हो गया 16, ठीक है। इसको काटो 3 से, 2 से काटो 3 हो गया, ये हो गया 8। आई थिंक ये आप जानते हो ये लोग, आप लोग तो 3 नीचे में 3 इंटू 3 9 हो गया, ऊपर में 8 इंटू 100 800 हो गया। ये इधर होगा मीटर पर सेकंड। देखो पहले था किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, अब देखो हो गया मीटर पर सेकंड। अब इसको डिवाइड करके जो आएगा आपको वही होगा रिजल्ट, ठीक है। ये होप दिखाना नहीं पड़ेगा, आप लोग तो आता है ना डिवाइड, वेरी गुड। चलो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो चीता, ये करोगे क्या, इसको भी ऐसे, इसको मैं दिखाता हूँ कैसे करोगे। इसमें इसमें भी लिखोगे, मैं इसको पहले बताता हूँ, मैं एक एक दिखाता हूँ ताकि तुम लोगों को कोई परेशानियां ना हो, ठीक है। चलो यहाँ से, ये जो 5 दिया ना, 5 में से एक एग्जाम में 100% आएगा, 100% आएगा। चलो करते हैं। ये जो देखो 120 सेकंड वाला 112, तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे स्पीड, स्पीड इक्वल टू 112 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, इसको पहले 112 लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, ठीक है, 1000, यहाँ पे लिखोगे मीटर, नीचे में आओगे 1 इंटू 60 इंटू 60, ये हो गया सेकेंड, ठीक है। अब इसकी कटिंग करोगे, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, फिर इसको काटोगे 2 से, हो गया 3, इसको काटोगे 2 से, हो गया 5 टू जार 10, 6 टू जार 12, ठीक है। आप ये करता है क्या, किससे करता है, ये 6 है, इसको भी काटो 2 से, हो गया 3, इसको काटो 2 से, ये हो गया 28, ठीक है। अब क्या है, अब तो नहीं काटेगा, आप नीचे में हो गया 9, 3 इंटू 3 9, ऊपर में हो गया 28 इंटू 10 मतलब 280, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो इसका अगर हम डिवाइड करते हैं 9 से 280 को, 280 क्या आता है, देखो 3 9 होता है 27, जानते हो तुम लोग, 3 का टेबल मालूम है तुमको, 1 आता है रिमेनिंग 10, 9 1 9, फिर यहाँ पे एक पॉइंट देना, एक जीरो लाना, 10 9 1 देना, इसका होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 31.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आंसर होगा 31.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये किलोमीटर पर आवर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे जो सारे, आप ऐसे ही करना, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 दिया, 40 और 46, यस, पहले 40 को करोगे, एक वैल्यू आएगा, फिर यहाँ पे डैश दोगे आंसर में, फिर 46 को करोगे, फिर और एक वैल्यू आएगा, तो लिख देना, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पे और टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को प्रोसेस दिखा दिया, ठीक है। माई ड्यूटी इज टू शो यू द रूल्स एंड द प्रोसेस हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स वेरी फास्ट, ओके। ओके चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड।
ठीक है, सब करके दिखाएंगे अभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट 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 आते हैं। नेक्स्ट आता है, इसको देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो ग्राफ कैसे ड्रॉ करता है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज बोल सकते हैं, व्हाट इज ओडोमीटर। देखो, ओडोमीटर क्या है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ओडोमीटर, ओडोमीटर का दिखाया है यहाँ पे। देखो लिखा हुआ ना यहाँ पे ओडोमीटर। देखो, ये है ओडोमीटर। ये क्या करता है, ये लिखा है देखो, स्पीड डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर। देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल। तो व्हीकल का जो कितना डिस्टेंस मूव किया, वो मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं ओडोमीटर। अब तुम देखना गाड़ी में इस तरह से एक मीटर लगा रहेगा। ठीक है, तो इसमें दिखाएगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, ये पे उठता है ना, ये देखो किलोमीटर उठ रहा है। ठीक है, ये स्कूटर में भी है, बाइक में भी है, गाड़ी में भी है। ठीक है, और ये जो कांटा घूमता है इसे, ये होता है स्पीड दिखाता है, स्पीड, इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, और ये जो बीच में है मीटर, इसको बोलते हैं ओडोमीटर। ये किलोमीटर में रीडिंग दिखाता है। सपोज ये तुम जब घर से बाइक लेके निकाला, तब इसमें लिखा हुआ 5851। ठीक है, तुम घूम के आ गया, तो तुमको पता नहीं कितना घुमा, तुम आके इसमें देख लेना, रीडिंग पता चल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 560 हो गया, तो पहले था ना 56, नहीं 590 हो गया, पहले था 585, तो अभी हो गया 590, मतलब आपने कितना घूम के आया, 5 किलोमीटर। क्योंकि 590 माइनस 585 हो गया 5 किलोमीटर। ऐसे ऑटोमीटर इसका स्पीड, मतलब इसका कितना चला, वो बताता है। ठीक है, चलो वेरी गुड, ऑटोमीटर के बता दिया आप बताऊंगा क्या, बताऊंगा कुछ है क्या बताने के लिए, होगा ना। चलो, आप ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये ग्राफ क्या होता है, ये बार ग्राफ, ये है बार ग्राफ है। ये बार ग्राफ क्यों है? देखो, ये जो दिख रहा है ना आपका, यहाँ पे कलरिंग, ये देखने में लगता है ना आपका जो होता है चॉकलेट बार, डायरी मिल्क का चॉकलेट बार है ना, ये बार है, जैसा दिखता है ये, इसीलिए बोलते हैं इसको बार ग्राफ। ठीक है, ठीक है, तो ग्राफ मतलब है वहाँ पे है ना, ऐसे होगा। मैं बताता हूँ ग्राफ पहले क्या होता है। ठीक है, ऐसे एक्सिस, एक होता है वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और इधर एक लाइन होता है, ये एरो होता है इसमें, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ग्राफ पेपर होंगे यहाँ पे, ग्राफ पेपर भी दिखाया हुआ बुक में, मैं दिखाऊंगा अभी। ग्राफ पेपर में ऐसे लाइन ड्रॉ करके, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल को बोलते हैं वो एक्सिस। फिर इसमें यहाँ पे कुछ देता है पैरामीटर, यहाँ पे कुछ पैरामीटर। ठीक है, ये जो पैरामीटर है ना, ये इसका जो पैरामीटर होगा ना उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ओवर्स, जो क्रिकेट मैच में ओवर नहीं होता है, 6 बॉल में एक ओवर होता है। ठीक है ना, तो देखो एक ओवर का दिखाया, फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, फिफ्थ ओवर, सिक्स ओवर। ठीक है, ये ओवर में कितना रन किया, ये रन नंबर दिखे ऊपर की तरफ देखो। यहाँ पे फर्स्ट ओवर में जो ओवर वन चल रहा है, तब इसको ओनली एक रन किया बनाया, बाकी 5 बॉल में कुछ किया नहीं है। सिर्फ जो सेकंड ओवर हो ना, तो उन्होंने किया कितना, सेकंड ओवर में 5 रन किया। ये वाला ग्राफ का जो हेड है ना, देखो यहाँ पे जाके 5 में मिलता है, इसीलिए उसको बोलता है 5 हो गया। 3 ओवर में, थर्ड ओवर में कितना किया, देखो ये इसमें इधर से मिला हो जाके कहाँ पे मिलता है, ये 3 में। देखो 3 ओवर में, थर्ड ओवर में इन्होंने 3 किया। फिर फोर्थ ओवर में कितना किया, फोर्थ ओवर में किया इन्होंने, इसका अगर इसे मिला हो 10, तो फोर्थ ओवर में 10 कर दिया। ठीक है, ऐसे एक तरफ ओवर दिया, एक तरफ रन दिया, ऐसे दो एक्सिस बन के एक मिलते हैं, ग्राफ बोलते हैं, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है, अच्छा, जो ये भी हमने बार ग्राफ भी समझ लिया, ग्राफ और भी होता है, ये मैं अभी दिखाऊंगा आपको एक प्रेजेंटेशन में बना के, सब दिखाएंगे फॉर इजीनेस। ठीक है, अच्छा, आप चलते हैं हम
देखो, ये होता है ग्राफ पेपर, आपने देखा होगा क्लास 5 में। ग्राफ पेपर में ऐसे बहुत सारा स्क्वायर रहता है, फील्ड। इसी में ही आपको, ये जो बोला भी ना अभी थोड़ा में देर पहले मैंने बोला था, बार, ये होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो आपको अगर ग्राफ ड्रॉ करना है, इसको आप पेंसिल से हाईलाइट करना है, ऐसे कोई भी लाइन को तुम हाईलाइट कर सकते हो। इसको बनाओ, ये पे दिया एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस, ठीक है। आप एक्स एक्सिस इसको भी बना सकते हो, कोई भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको ग्राफ, बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे होगा बार ग्राफ, ठीक है। ऐसे कम भी हो सकता है, ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। ये होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, आप लोग स्केल से करना, ठीक है। तो इसको ऐसे एरो दोगे, इधर भी ऐसे एरो दोगे, एरो, एरो। राइट साइड में जो होगा एक्स, एक्स डैश बोलते हैं, एक्स डैश। ये एक्स है, ये देखो एक्स के ऊपर एक डैश लिखा हुआ है। ये वाई है, ये भी देखो वाई के ऊपर डैश लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बार। अच्छा, ये ग्राफ जो है ना, ग्राफ भी बेसिकली तुम्हारा सिलेबस तक में ग्राफ बहुत तरह का होता है, बट तुम्हारा जो यहाँ पे बुक है ना, उसमें सिर्फ 3 टाइप का ग्राफ यूज किया। ये बार ग्राफ, और पाई ग्राफ, एंड लाइन ग्राफ, ठीक है। पाई चार्ट बोलते हैं इसको, पाई, इसको बोलते हैं लाइन, क्योंकि ये एक लाइन से बनाया हुआ है, ठीक है। तो जो बार की तरह दिखता है उसको बोलते हैं बार ग्राफ, जो लाइन की तरह दिखता है उसको बोलते हैं लाइन ग्राफ, ठीक है। और जो पाई मतलब है ऐसे राउंड डिश की तरह, ठीक है, इसको बोलते हैं पाई, ठीक है। तो ये कैसे होता है मैं अब दिखाऊंगा। ये जो ओवर मैंने दिखाया था ना अभी आपका, ये ओवर का देखे मैंने एक ग्राफ यहाँ पे दिखाया, देखो। सिंपल एक ग्राफ मैंने अभी आपको दिखाऊंगा, दैट इज, देखो ये जो दिखाता हूँ। अच्छा, इसका थोड़ा एनोटेशन हो गया था, इसको भी हटाता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको भी, ये स्लाइड शो में दिखाऊंगा फ्रॉम करंट साइड, देखो ये वाला, ये तो करंट साइड हो गया, ये है करंट साइड, फ्रॉम करंट साइड। देखो ये ग्राफ में है, मैं दिखाने वाला हूँ। तुम्हारा जो बुक में है ना, 3 टाइप्स का ग्राफ दिखा गया। तो ये ग्राफ कैसे होता है, कैसे बनाता है, देखो। यहाँ पे डेटा जो है ना, ये है, टीम ए रन्स इन ईच ओवर 1 5 3। पहले ओवर में 1 बनाया, दूसरे ओवर में 5 बनाया, तीसरे ओवर में 3 बनाया, फिर चौथा में 9 बनाया, फिर पांचवा में 2 बनाया, और छठा में 6 बनाया, ठीक है। जो जो क्रिकेट का फैन है उसको मेरे से भी ज्यादा जानते हो, क्या बताऊं तुम लोगों को। चलो, आप दिखाएंगे बार ग्राफ, ठीक है। मैंने पहले बोला था बार ग्राफ दिखता है चॉकलेट बार की तरह। अब देखो ये हो गया बार ग्राफ, इधर में ओवर है, इधर रन है, ठीक है। ये है बार ग्राफ, ठीक है। और अभी देखो लाइन ग्राफ, देखो इसी ग्राफ को ना आप लाइन से कर सकते हो। देखो ये 1 है, ये देखो ये वाला पॉइंट, मतलब ये हुआ आपका, फिर यहाँ से ये ग्राफ ऊपर चला गया, मतलब ये पॉइंट को जो मैं दिखाता हूँ आपको, एनोटेशन देखिए। ये जो पॉइंट है ना, मैं, ये लाइन ग्राफ कैसे आया, देखो ये बार ग्राफ में है, ये उसका 1 है, लाइन, इसको मैं, ये और यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। अगर इसको पॉइंट दोगे ना, सिर्फ जैसे बार ना देखे, ये पॉइंट होगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा। क्योंकि क्यों, देखो एक ओवर में 1 बना, मतलब एक का लाइन इधर है, यहाँ पे आया। दूसरा ओवर में 5 बना, तो ये 5 का पॉइंट यहाँ आएगा। तीसरा ओवर में 3 बना, तो ये पॉइंट इधर आएगा। चौथे ओवर में 9 बना, ये 9 है, तो 9 को इधर में बढ़ाओगे तो यहाँ आएगा। पांचवा ओवर में 2 बना, 2 का इधर आता है। छठा ओवर में 6 बना, तो ये इधर आएगा। तो ये जो सारे पॉइंट है ना, सारे पॉइंट है ना, ये अगर ज्वाइन करोगे ना ऐसे, स्ट्रेट एंड स्ट्रेट, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हो गया, देखो ये बन गया लाइन चार्ट, ठीक है। ये लाइन से रिप्रेजेंट किया तो लाइन चार्ट, और बार से किया तो बार ग्राफ, ठीक है। आप बोले पाई चार्ट क्या है सर, ये भी दिखाता है, ठीक है। ये पाई चार्ट भी दिखाता है आपको। देखो ये पाई चार्ट हो गया आपका ऐसा, ये पाई, इसी को ही देखो, ये ओवर जो है ना, ये होता है परसेंटेज में। देखो ये 1 2, ये कितना हिस्सा हुआ, 5 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पोर्शन बन गया। जो जो 6 होगा थोड़ा बड़ा होगा, और जो 1 होगा तो इसका इसका ये होता है इसका शेयर, ठीक है। पाई मतलब शेयर बराबर शेयर, एक पूरा सर्कल में इसका शेयर कितना है, ठीक है। जो तो आप लोगों ने पिज्जा खाया होगा ना, पिज्जा में कटिंग रहता है ना, इक्वल इक्वल। तो अगर 7 इक्वल पार्ट है तो 7 बंदे खा सकते हैं। अगर इक्वल पार्ट नहीं किया तो बड़ा होगा, ये भी जिसका जिसका हिस्सा बड़ा है उसका बड़ा दिख रहा है। जो 6 सबसे बड़ा, 9 सबसे बड़ा हो गया, ये देखो 9,
क्रिया इसे मतलब कितना बड़ा है इसका शेयर, वो बहुत सिंपल में दिखाने के लिए ये पाई चार्ट यूज होता है, ठीक है। दिस इज द पाई चार्ट, ठीक है। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट सेशन। व्हाट इज दैट? दैट इज एनोटेशन में कुछ करते हैं हम। एनोटेशन को बंद नहीं करते, इसको हम हटाता है। Maybe this video is getting longer, but it is interesting. Okay, you should understand all these points from the inside topics of the book. Okay, otherwise no meaning of only doing the exercise problems. Okay, chalo let. So this has already been shown to you in the extra. अब आ जाता है ये जो है ना ग्राफ, मेकिंग ए ग्राफ, ये लाइन ग्राफ है, ठीक है। तो जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो लाइन ग्राफ में आपको जो स्पीड होता है ना, वो स्पीड का कुछ ग्राफ ड्रॉ करता है। देखो यहाँ पे कोई भी ग्राफ ड्रॉ करेगा ना, इसका दो चीज होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन में, और एक होता है वर्टिकल लाइन में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो होता है वो होता है जिसका ऊपर वो डिपेंड करता है टाइम, और ये है डिस्प्लेसमेंट। कोई चीज अगर मूव कर रहा है तो टाइम बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, टाइम घटेगा तो डिस्प्लेसमेंट घट कम होगा, ठीक है। ये अगर यहाँ से चल रहा है एक कार, अगर ये कार है, ठीक है, ये कार अगर ऐसा चल रहा है, देखो टाइम बढ़ रहा है तो ये पहले गया, ये पहले गया 2 किलोमीटर, ये पहले गया 2 किलोमीटर, फिर टाइम बढ़ रहा है, फिर गया 3 किलोमीटर, फिर टाइम बढ़ रहा है, फिर गया 4 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको क्या करना है हमको, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसीलिए देखो जब जब ये इधर टाइम देख रहा हूँ सेकंड मिनट में, 1 मिनट हुआ तो ये गया, ऊपर का होता है डिस्टेंस, ये होता है ये गया 1 किलोमीटर। देखो ये ऊपर में किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। जब देरा टाइम तो 1 मिनट में गया 1 किलोमीटर, 2 मिनट में गया 2 किलोमीटर, 3 मिनट में गया 3 किलोमीटर। इसका मतलब टाइम है, इसका है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है ना, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है तो इसका ग्राफ पता कैसे होगा, इसका ग्राफ होगा ऐसे, कर्व होगा, ठीक है। तो पर एग्जाम में ऐसे 2-3 ग्राफ देगा, एक ग्राफ देगा ऐसे स्ट्रेट लाइन, एक ग्राफ देगा ऐसे कार्व लाइन। तो कार्व जो है ना वो होता है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और अगर स्ट्रेट होगा तो होगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो होप यू गॉट इट। नाउ आई एम मूविंग फास्ट to make this video a little bit short. Okay, so फिर भी ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं खत्म करता हूँ एक साथ में। डियर स्टूडेंट, प्लीज रिमेन विथ मी। दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहले भी ड्रॉ किया था, ठीक है। वो भी था डिस्टेंस टाइम का, ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। टाइम के साथ ये ग्राफ होता है, ठीक है। अच्छा, अब आओ, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल आ जाओ, सिंपल आ जाओ। यहाँ पे देखो, ये पाया क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं सारे चैप्टर इन इन टेक्स्ट में समझा दिया। तो आज अभी मैं वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा विथ योर एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्यूशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट फॉर रिमेनिंग विथ मी ऑल दिस टाइम्स। आई विल गेट यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो विद द सोल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है। होप यू विल बी गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। थैंक यू, बाय बाय।